12th class for accounts, 73rd question. Kochi Silk Limited issued a prospectus inviting application for 40,000 share of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share, payable as follows. So 8 rupees premium is there and 10 rupees par value is there. On application, this is including 2 rupees premium, that means 4 plus 2. 4 for application, 2 for premium. On allotment, again 4 plus 2, 4 per lot, 4 is for allotment and 2 for premium. On first call, it is 1 plus 2, that is 1 for first call and 2 for premium. And on second and final call, it is again 1 plus 2, 1 for second and final call plus rupees 2 for premium. So that I have written over this like this कि हाँ ये इस तरह से लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस तरह का बाइफर्केशन है, ठीक है. And then next, application were received for 80,000 shares. So 80,000 shares, you have received the application for 80,000 share basically, and pro rata allotment was made on the application of 70,000 share. Pro rata allotment आपने 70,000 को किया. कितना अलॉट किया आपने 70,000 शेयर्स को? 40,000 शेयर. और बाकी 10,000 का क्या किया? 80 में से 70,000 शेयर्स होल्डर को तो आपने शेयर अलॉट कर दिए 40,000 के, और बाकी 10,000 को क्या किया? रिफंड किया. इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी towards a sum due on allotment. X to whom 1200 shares were allotted. So this is the allotted. You have to calculate the applied in this case, and failed to pay the allotment money and the first call money. Subsequent failure to the first call money and his share were forfeited after that. Y who applied for 3,500. Now you have to calculate the allotted share to Y. In this case, failed to pay the 2 calls, and on his such failure, his shares were also be forfeited. Of the shares forfeited, 2,500 share has been issued for fully paid up for rupees 9 per share. The whole of Y share being included in that. Prepare cash book and journal entries. Now here to prepare the cash book and journal entries. That means no need to pass the bank entries with the journal. So first you have to go through the table. So while making the table, there is 70,000 shares applied and 40,000 shares allotted to them. So share application money received in this case 70,000 into 4, 70,000 into 2. There, if you don't want to make this total, then you can write down the sum altogether like 70,000 into 6. You can write fine. यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो 4,20,000. आपको ज़रूरी नहीं है ये आप इस तरह से प्लस करके दिखाओ, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू 40,000 इंटू 4, 1,60,000. 40,000 इंटू 2, ये बहुत ज़रूरी है. आप बताओ कि कितना आपको यहाँ पर बाइफर्केट करो ड्यू पर कि कितना आपका एप्लीकेशन मनी है, कितना प्रीमियम. देन एक्सेस अमाउंट इज़ 1,80,000. हाउ आई गेट द एक्सेस मनी? दैट इज़ 2,40,000 here you are having, and there it was a total 4,20,000. 4,20,000 का टोटल यहाँ था, 2,40,000 यहाँ है, ठीक है. So in this way you will get your excess 4,20,000 minus 2,40,000. इसको माइनस करोगे तो ये 1,80,000 आ जाएगा एक्सेस आपका, ठीक है. Now allotment money due, that will be definitely on 40,000. 40,000 into 4, 1,60,000. 40,000 into 2, 80,000. ये हो गया आपका ड्यू. Now yet to be receive on allotment. 1,60,000 में से आपने 1,80,000 एडजस्ट कर दिया, ठीक है. एडजस्ट कितना हुआ? 1,60,000 एडजस्ट हो गया, तो 1,80,000 माइनस 1,60,000, 20,000 और एडजस्ट हो गया, तो ये दोनों टोटल आ गया 1,80,000. इतना अमाउंट आपका एडजस्ट हो गया. बाकी बैलेंस कितना बच गया? 60,000, वो भी प्रीमियम का. पहले अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करोगे, फिर प्रीमियम का, तो 1,80,000 में से पहले 1,60,000 माइनस करोगे. अभी ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा अमाउंट? 20,000. 80,000 माइनस 20,000, 60,000. दैट इज़ येट टू रिसीव ऑन अलॉटमेंट, और ये एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. ये मैंने दोनों अमाउंट इसमें लिख लिए, ठीक है. आगे फर्स्ट कॉल तो कोई बात नहीं गई, इसलिए आगे मैंने नहीं कैलकुलेट किया. एक्स और वाई 2,100 शेयर्स हैं इसके अंदर, जिसके लिए अप्लाई किया. कैसे? 1,200 अलॉटेड गिवन है. 1,200 इंटू टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड, ये आ गया आपका 2,100 अप्लाई. अब आप शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव निकालोगे. 2,100 पे आपको 6 रुपीज़ मिले हुए हैं, तो ये आप इसको इकट्ठा दिखा सकते हो. 8,400 प्लस 4,200 आपको मिले हुए हैं, तो ये हो गया आपका अमाउंट टोटल 12,600. और यहाँ आपको शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू है आपकी 4,800 प्लस 2,400. ये ड्यू इस पे निकालोगे, रिसीव इस पे निकालोगे, ठीक है ना. 7,200 अमाउंट आपको मिला हुआ है, ठीक है. अब इसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे. 12,600 माइनस 7,200 आ जाएगा 5,400 एक्सेस जो है आपकी. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू निकालोगे, दैट विल बी ऑन 1,200, तो ये भी आ जाएगी आपकी सेम 4,800 प्लस 2,400. अब एडजस्टमेंट करोगे.
4800 अलॉटमेंट के इस एक्सेस में से एडजस्ट हो गए, एक तो ये एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद बाकी पैसा बच गया 600 का, 600 प्रीमियम के एडजस्ट हो गए, तो ये हो गया एडजस्टेड अलॉटमेंट। 1800 जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिला, क्योंकि उसने बोला है कि ये वाले जो एक्स शेयर होल्डर है इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो भी ड्यू अमाउंट था अलॉटमेंट का नहीं दिया। ये तो इसलिए इसने दे दिया ना, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे ही बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया था, तो ये एडजस्ट हो गया। ये पैसा उसने नहीं दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट रिसीव्ड, और ये मैं लिख दिया एडजस्टेड। अब फर्स्ट कॉल मनी जो है इसकी 1200 प्लस 2400, ये है फर्स्ट कॉल मनी जो कि नॉट रिसीव्ड, और फिर इसके बाद इसके फॉरफिट हो गए। नाउ वाई 3500 शेयर हैज़ बिन अप्लाइड, फॉर दैट ही हैज़ बिन अप्लाइड, और अब इसका 2000 अलॉटेड आ जाएगा। कैसे? 3500 अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड इंटू टोटल शेयर्स अलॉटेड, ये आ जाएगा 2000। अब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव निकाल लो, 3500 इंटू 4, 3500 इंटू 2, 14000 प्लस 7000। शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू निकाल लो 2000 पे, दैट इज़ 8000 इंटू 4, हाउ 2000 इंटू 4 8000, 2000 इंटू 2 4000। अब एक्सेस निकाल लो, 9000 एक्सेस आ गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू निकाल लो, किस पे निकलेगी? 2000 पे, 8000 प्लस 4000। ये बाइफरकेट करके लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अब यहाँ पर। अब यहाँ पर 8000 9000 से एडजस्ट हो गए, यानी कि बाकी 1000 बच गया, तो 4000 प्रीमियम में से 1000 रुपये एडजस्ट कर दिए, ये हो गया एडजस्टेड अमाउंट, और ये इट्स येट टू बी रिसीव। प्लस का मतलब यानी कि अलॉटमेंट पूरा एडजस्ट हो गया, 3000 प्रीमियम इज़ येट टू रिसीव, ये रिसीव्ड हो चुका है। अब वाई ने कोई अलॉटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वो अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिसीव लिख लिया। फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी इसने नहीं दिया, तो नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल, दिस इज सेकंड कॉल, और इसके तो सेकंड कॉल तक आए नहीं, फॉरफिट हो गए। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट और पास द एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर एंड कैश बुक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आपको बेसिकली इसने शेयर्स अप्लाई किए हैं 80,000 शेयर्स के लिए, तो एंट्री आ जाएगी कैश बुक की डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। 4,80,000 कैसे आया? ये आया आपका 80,000 इंटू 6, ये 4,80,000 आया आपका 80,000 इंटू 6, ये ऐसा आया आपका, ठीक है ना, क्योंकि 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब इसमें से 10,000 शेयर्स वापस हो गए, तो वो एंट्री कहाँ हो जाएगी? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000, 10,000 इंटू 6 से। और अब बाकी आप ड्यू की एंट्री करोगे तो एडजस्ट करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000। अब यहाँ पर आप जो बैंक अकाउंट का पैसा है 60,000, ये इसमें से माइनस कर दोगे। ये आया ना 420 कैसा है? 4,80,000 माइनस 60,000, क्योंकि ये आपको टोटल रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे, ये आपने पैसे वापस कर दिया। तो बैंक की एंट्री कैश बुक अगर बनानी है तो यहाँ नहीं होगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब आपने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? 40,000 के। 40,000 पे आप वापस करोगे पैसा 40,000 इंटू ये आपके है 4, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। 80,000 ये जो आपके 40,000 पे जो प्रीमियम बनता है ये यहाँ पर आएगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 1,80,000 एडजस्ट होगा, जो कि तुम टेबल में भी देख चुके हो। 1,80,000 का एक्सेस था, तो 1,80,000 का एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट करते वक्त हम ये नहीं दिखाते कि प्रीमियम पे एडजस्ट किया या अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे एडजस्ट किया, सीधा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाएगा ये पैसा। ठीक है, सो द एप्लीकेशन रिसीव फॉर 70,000 शेयर एडजस्टेड फॉर 40,000 शेयर प्रो राटा अलॉटमेंट। नाउ यू विल मेक द एंट्री ऑफ ड्यू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर आपके 40,000 शेयर अलॉट किए हैं, 40,000 इंटू 6, फिर यहाँ पर आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डालोगे 40,000 इंटू 4, यहाँ डालोगे 40,000 इंटू 2। ठीक है, अब बैंक की एंट्री कहाँ पास करोगे? वो इधर कैश बुक में पास करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट आपने कैसे निकाला? देखो, इस अमाउंट को निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले टोटल अलॉटमेंट ड्यू निकाल लो। टोटल अलॉटमेंट ड्यू 40,000 के हिसाब से आपकी बनती है इतनी 2,40,000। ठीक है, इसको पहले ऊपर रख लो, फिर जितना पैसा एडजस्ट किया सारा इसमें से माइनस कर दो। कितना पैसा एडजस्ट किया? 1,80,000। अब अगर आपको कुछ नहीं रिसीव हुआ तो वो माइनस करो। पहले टोटल अलॉटमेंट ड्यू निकाल लो, फिर जो पैसा टोटल एडजस्ट किया है वो माइनस कर दो इसमें से अलॉटमेंट का, फिर वो पैसा माइनस करो विच इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आसानी से निकल आएगा कि आपको कितना अमाउंट बैंक पे मिला है अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये माइनस करोगे आ जाएगा 58,200। तो यही हमेशा प्रोसीजर फॉलो करो। पहले टोटल अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू निकाल लो, कितनी तुम्हारी बनती है, फिर टोटल एडजस्टेड, जो भी टोटल एडजस्टेड है वो सारा माइनस कर दो, फिर नॉट रिसीव्ड बाय एनी शेयर होल्डर वो माइनस कर दोगे, 58,200 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिखाओगे 58,200 इधर। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री दिखाओगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये आपकी 40,000 पे ये आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री दिखाई 40,000 इंटू 2 40,000 इंटू 1, ये आपकी होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव करोगे पैसा, ठीक है। इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फर्स्ट कॉल की। इसमें भी सेम ये प्रोसीजर फॉलो करो। टोटल अमाउंट ड्यू है आपका 1,20,000, नॉट रिसीव है 3,600 एंड 6,000, क्योंकि ना तो एक्स ने फर्स्ट कॉल दी ना वाई ने फर्स्ट कॉल दी। तो एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, दिस प्लस दिस, और वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, दिस प्लस दिस। ये हो जाएगा आपका 3,600 की तो एक्स ने नहीं दी और इसने 6,000 वाई ने नहीं दी। 3,600 और 6,000 ये दोनों माइनस कर दोगे अमाउंट, ये एक्स का है नॉट रिसीव और ये वाई का है नॉट रिसीव। ये आ जाएगा आपका 1,10,400। 1,10,400 आप दिखा दोगे इधर तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,10,400 डन। इसके बाद अब फॉरफिट की एंट्री करोगे, क्योंकि इसके बाद उसने बोला है कि एक्स के शेयर फॉरफिट हो गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200 इंटू 9, क्योंकि 1,200 शेयर्स थे उसके जो फॉरफिट हुए हैं। 9 आपने अभी तक पैसा मंगवाया है, प्रीमियम रिजर्व को अलग रखोगे और जो तुम्हारा फेस वैल्यू है पार वैल्यू उसको अलग रखोगे। 1,200 इंटू 9, 9 कैसे आपने जो कॉल्ड अप किया है पैसा, जो आपका एक्स है उससे आपने मंगवाए हैं 4 रुपये एप्लीकेशन के, 4 रुपये अलॉटमेंट के और 1 रुपया कॉल का, ये हो गया 9 रुपीज़। प्रीमियम को अलग रखो, तो 9 से करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वही पैसा डालोगे जो आपको रिसीव नहीं हुआ। अब इसको एक्स का कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ प्रीमियम का, देखो प्रीमियम का अगर आप देखते हो, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। प्रीमियम में आपने जब अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट की थी तो 1,800 रुपये का अमाउंट रिसीव लिखा मैंने, नॉट रिसीव, दिस इज़ फॉर प्रीमियम। मैंने हमेशा प्लस रखा है, ये ऊपर छोड़ दिया मैंने, ब्लैंक छोड़ दिया, प्लस 1,800, इसका मतलब ये प्रीमियम का पैसा 1,800 एक्स का आपको रिसीव नहीं हुआ और इधर से आपको प्रीमियम का पैसा 2,400 रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम का पैसा एक तो ये है और एक ये है, ये आप क्लियरली दिखाओगे तभी आप बना पाओगे, नहीं तो आपका गलती होने के चांसेस है, ठीक है। ये अलॉटमेंट का प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ, बाकी तो एडजस्ट हो गया था ना, 600 प्रीमियम मिल गया। बेसिकली अलॉटमेंट पे 2,400 प्रीमियम ड्यू था एक्स की तरफ से, 2,400 में से 600 तो एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, बाकी 1,800 उसने दिया नहीं, तो 1,800 का ही सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट दिखाओगे। जो रिसीव हो गया प्रीमियम का अमाउंट वो यहाँ नहीं दिखाते, तो 1,800 अलॉटमेंट का और ये 2,400 फर्स्ट कॉल का दिखाओगे प्रीमियम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, दिस इज़ डेबिट विथ 4,200, ठीक है। अब नाउ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो आपको नहीं मिला पैसा, दैट इज़ 2,400 प्लस 1,200, यहाँ प्रीमियम का पैसा इंक्लूड करोगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,800 वॉज लेफ्ट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये आपको कितना मिल गया, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि आपने एप्लीकेशन का 4,800 लेना है क्योंकि बिना प्रीमियम का पैसा, और अलॉटमेंट का भी आपने बस वही पैसा लेना है जो बिना प्रीमियम का है। अब देखो एडजस्टमेंट हुई है, ये यहाँ पर एडजस्टमेंट मैंने किया है ना, प्लस की, तो मुझे समझ में आया 4,800 प्लस 4,800 एप्लीकेशन का अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट। 600 प्रीमियम का जो एडजस्ट हुआ वो यहाँ नहीं दिखाना, तो 4,800 प्लस 4,800, ये हो जाएगा आपका पैसा 9,600 जो आपको मिला। मैंने ना अलॉटमेंट में प्रीमियम को ऐड किया, ना ही एप्लीकेशन में प्रीमियम को ऐड किया। एक बात अच्छे से याद कर लो, शेयर फॉर फ्यूचर में कभी प्रीमियम आता ही नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड कॉल की एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखोगे, आपके 40,000 शेयर्स थे, उसमें से 1,200 के शेयर्स अब खत्म हो चुके हैं, वो आप फॉरफिट कर चुके हो। तो अब आपका सेकंड कॉल कितने अमाउंट पर ड्यू होगा, ये आपका होगा 38,800, यानी कि 40,000 माइनस 1,200, तो ये हो जाएगा आपका 77,600, ठीक है। 38,800 ये आपका है 2 रुपये का प्रीमियम, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका है, ये उल्टी एंट्री हो जाएगी आपकी। ये आपकी एंट्री ऐसी होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 38,800, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 77,600, क्योंकि 2 रुपये का प्रीमियम है और 1 रुपये का आपका ये है फर्स्ट सेकंड कॉल है, इसीलिए एंट्री ऐसे होगी, ठीक है। और ये इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में इन दोनों को प्लस करके दिखा दोगे, दैट इज़ 1,16,400। अब बात यह है कि आपने बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालना है। सेकंड कॉल बैंक अकाउंट के लिए भी आप ऐसे करोगे, यहाँ पर आपको देखो सेकंड कॉल के लिए 1,16,400 ये आपका अमाउंट ड्यू है, इसमें से लेस कर दोगे विच इज़ नॉट रिसीव, ये टोटल ड्यू अमाउंट है। और नॉट रिसीव कितना है, नॉट रिसीव सिर्फ वाई ने नहीं दिया क्योंकि 100 तब खत्म हो गया, तो 6,000 रुपीज़ का अमाउंट ये नॉट रिसीव्ड है, माइनस करोगे 1,10,400 दैट यू हैव रिसीव, तो ये एंट्री कर दोगे टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 1,10,400, ठीक है। अब आप फॉरफिट की एंट्री करोगे, अब फॉरफिट होंगे 2,000 शेयर वाई के फॉरफिट हो रहे हैं, एक्स के तो पहले ही हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 10 क्योंकि पूरा कॉल्ड अप कर चुके हो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट क्योंकि आपका प्रीमियम है 8,000 का इसके अंदर, और
इसमें बेसिकली आपने वो प्रीमियम का पैसा दिखाना है जो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल पे 4 रुपये का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो 4 इंटू 2000 इंटू 4 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम का पैसा है जो आपको रिसीव नहीं हुआ। दैन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो पैसा आपको नहीं मिला अभी तक 6000, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 6000, इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा है और एडजस्टेड, ये 16000 है, शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। इसको निकालने के लिए देखो तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन में। शेयर एप्लीकेशन में आपने ड्यू दिखा 8000, एक तो ये वाला पैसा आएगा क्योंकि ये आपको मिल चुका। फिर आपको एक्सेस गया 9000 में से सिर्फ अलॉटमेंट वाला ही जो आपने एडजस्ट किया बस ये आएगा, ये 8000 और ये भी 8000, क्योंकि आपको प्रीमियम मिल चुका है, ये पैसा आप नहीं दिखा सकते फॉर फ्यूचर में। तो आपने शेयर फॉर फ्यूचर में बेसिकली दिखाना है सिर्फ 16000, दिस इज 16000, ठीक है। अब आपने एंट्री करनी है इसकी इशू की एंट्री भी सीधा यही होगी। इशू हुआ है आपका, क्वेश्चन में गिवन है कि 29500 शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर एंड ऑल वाइज शेयर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इट। तो अब 9 रुपीज़ पे जो 9 रुपीज़ है ये बैंक अकाउंट के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ गया 12500, यानी कि 2500 इंटू 9, ठीक है। बाकी पैसा आपका क्या है, डिस्काउंट, क्योंकि आपकी एंट्री बेसिकली हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ डाल दिया। अब शेयर फॉर फ्यूचर यानी कि डिस्काउंट की एंट्री होंगी, तो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट अगर ये पासबुक नहीं बनता तो यहाँ पर आ जाती है एंट्री। अब 2500 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट है, इधर आ जाएगा, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2500। अब निकालोगे तुम कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। 2500 शेयर रीइशू है तुम्हारे, ठीक है। तो 2000 तो वाई के हैं, ये रहे वाई के, तो ये तो पूरा हो गया शेयर फॉर फ्यूचर का 16000। और ये जो एक्स है इसका 9600 जो है शेयर फॉर फ्यूचर का, 1200 शेयर के लिए 9600 है। तो फिर आप निकालोगे कि वट यहाँ पर निकालोगे, देखो शेयर फॉर फ्यूचर ऑन वाई 2000 शेयर 96000 है, ये 16000। शेयर फॉर फ्यूचर ऑन वाई शेयर 9600 है आपका 1200 शेयर के लिए, तो 500 शेयर के लिए कितना होगा, ये होगा आपका 4000। तो टोटल शेयर फॉर फ्यूचर जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है दैट इज़ 20000। और 20000 में से भी ये जो आपने यूज़ किया है डिस्काउंट का अमाउंट ये माइनस कर दोगे और बाकी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 17500। यहाँ पर कैश बुक में टोटल यहाँ पर बैलेंस निकाल लोगे, ये सारा प्लस करके माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 7,21,500। ये कैश बुक को एंड कर दो, ठीक है। इस तरह से आप दिखाओगे। क्लियर।